السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نادیہ خان۔ میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ سیاسی کارکنوں کی بے صبری نے افطاریوں کا مزہ کرکرا کر دیا۔ مختوم جاوید ہاشمی کی افطاری میں لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ شاہ محمود قریشی کی پارٹی میں وقت سے پہلے افطاری، ادھر سعید الہی کی افطاری میں کھانا کم پڑ گیا۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت 5 ماہ بعد بھی پی سی آر ٹیسٹ کی کٹس دستیاب نہ ہو سکی، غریب مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ شاہدرہ میں 300 بستر کا ہسپتال نومبر میں آپریشنل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے لیے 592 اسامیوں کی منظوری دے دی۔ پاسپورٹ اسکیننگ کے باوجود ایبٹ روڈ اور گارڈن ٹاؤن آفس میں ایجنٹ مافیا کا راج، جبکہ شہری قطاروں میں کھڑے خوار ہونے لگے۔ ڈی سی او کا ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ، ڈیوٹی سے غیر حاضر مینیجر ماڈل بازار کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس کے روٹ پر 1 کلومیٹر کی حدود میں ڈبل سواری پر پابندی، جبکہ کمشنر جواد رفیق ملک کا کہنا ہے کہ 21 رمضان مبارک کے موقع پر سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی شجاعت خان زادہ، ڈی سی او اور ڈی آئی جی آپریشن رائے طاہر کا مبارک حویلی کا دورہ، 21 رمضان مبارک کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تاج باغ میں شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کا مشترکہ آپریشن، 52 کینال سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی۔ پرویز ملک کی زیر صدارت صنعتی آلودگی روکنے کے حوالے سے اجلاس، توانائی بحران کے باعث صنعتیں خسارے سے دوچار ہیں۔ لاہور چیمبرز کے نمائندوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے سے انکار کر دیا۔ ڈی جی کچی آبادی کے افسر شاہی افسران کو ٹھنڈے کمرے اور تمام سہولیات دستیاب، جبکہ حبس اور گرمی کے مارے ملازمین احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ ایل ڈی اے نے ڈاکٹرز اسپتال کے توسیع منصوبے پر دوبارہ کام رکوا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قانونی تقاضے پورے ہونے تک کام بند رہے گا۔ خواجہ سراؤں کو لبرٹی مارکیٹ میں بھیک مانگنا مہنگا پڑ گیا، گرفتار 2 خواجہ سراؤں کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، پسند کی شادی کے بعد بیوی کو قتل کرنے والے عرفان زمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیپ ٹاپ کی خراب بیٹری واپس نہ کرنے پر الحفیظ لیپ ٹاپ گلبرگ کے مالک کی صارف عدالت طلبی۔ فیوچر کنسرن ایسوسی ایٹس کے خلاف دھوکہ دہی کیس کی سماعت، ہائی کورٹ کا فیوچر کنسرن کے مالک عاصم ملک کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم۔ ہائی کورٹ میں جنرل ہسپتال یو ٹرن کیس کی سماعت، سی ٹی او نے ایم بی آر ٹی منصوبے میں ایمبولینس لین پلان پیش کر دیا۔ لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کا فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ، وہاں علاج معالجے کی دستیاب سہولتوں کو سراہا۔ ہائی کورٹ بار میں محفل میلاد، جسٹس عائشہ اے ملک سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ریسکیو کی ابتدائی ٹریننگ کے حوالے سے 2 روزہ سیمینار، ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر عثمان نصیر نے طلباء کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی۔ رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ کی جوہر ٹاؤن میں افطار پارٹی میں شرکت، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما خورشید محمود قصوری نے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ منہاج القرآن میں اعتکاف کی تیاریاں مکمل، منتظمین نے شہر اعتکاف کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کنیڈ کالج میں سپورٹس میلہ، طالبات نے ٹیبل ٹینس، ہاکی، بیڈمنٹن اور باسکٹ بال مقابلوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ سٹی
42 की अफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में ASP गुलबर्ग तारिक अजीज और प्रिंसिपल समनाबाद कॉलेज तस्नीम अख्तर की शिरकत। और फैशन पाकिस्तान लाउंज में डिजाइनर सुमैरा खान के मलबूसात की नुमाइश में खवातीन की भरपूर दिलचस्पी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अफ्तार पार्टी का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासी कारकुनों की बेसब्री की वजह से बद इंतजामी के वाकयात भी इसी रफ्तार से सामने आ रहे हैं। सब्जाजार में तहरीक इंसाफ की पार्टी में लोगों ने 10 मिनट कबल ही खाना शुरू कर दिया। सब्जाजार ए ब्लॉक में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, वलीद इकबाल, जहांगीर तरीन, अशरफ भट्टी और दीगर रहनुमाओं के एजाज़ में अफ्तार पार्टी में 3000 से ज़ायद कारकुनों ने शिरकत की। अफ्तारी से 10 मिनट कबल ही PTI के कारकुनों ने तबले जंग बजाते हुए खाने पर हल्ला बोल दिया। जिसके हाथ जो कुछ आया वो माले गनीमत समझते हुए लौट कर चलता बना। PTI के रहनुमाओं की धुआंधार तकरीरों से बेनियाज कारकुनों ने पलक झपकते ही अफ्तारी से कबल अफ्तार टेबल्स को खाली कर दिया। जिन कारकुनों के हाथ में कुछ ना आया वो खाली बर्तन बजाकर कसम उस वक्त की का गाना गुनगुनाते दिखाई दिए, जबकि स्टेज से बार बार ऐलानात कराए जाते रहे कि खाना वाफिर मिक़दार में दस्तयाब है, कारकुन हौसला रखें। लेकिन रोज़ा अफ्तार होते ही खाना तो दरकिनार, रोज़ादारों को पानी तक न मिला। जो कारकुन इस मार्के में सुरखरू हुए वो नहायत पुरजोश अंदाज में नारे लगाते रहे, जबकि दीगर के चेहरों पर मायूसी अयां थी। और बात यही ख़त्म नहीं होती। डेविस रोड पर PTI ट्रेडर्स विंग की इफ्तार पार्टी में कारकुन खाने पर टूट पड़े, जबकि मुंतज़मीन ने अजान से 6 मिनट कबल ही रोज़ा खुलवा दिया। अफ्तार डिनर का एहतमाम PTI ट्रेडर्स विंग के जनरल सेक्रेटरी मलिक ज़मान नसीब और मलिक मोहम्मद आसिफ ने डेविस रोड पर वाक़ इत्तेहाद बैंक्वेट हॉल में किया था। दावत अफ्तार में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर मखदूम जावेद हाशमी, मियाँ महमूदुर रशीद, इंजीनियर यासिर गिलानी, हफीजुल्लाह नियाज़ी, ज़हीर अब्बास खोखर, रशीद बट, शबीर सयाल, गुलरेज़ इकबाल, मियाँ मुस्तफ़ा रशीद, इश्तियाक मलिक, चौधरी असगर गुजर, एजाज चौधरी और हफीजुद्दीन ने भी शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से तिजारती और सनती सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। अदलिया के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। जब अफ्तार का वक्त करीब पहुंचा तो मुंतज़मीन ने 6 मिनट कबल ही रोज़ा खोलने का ऐलान कर दिया। लोग गोया इसी इंतज़ार में बैठे थे और खाने पर टूट पड़े, जिसकी वजह से इंतहाई बदनज़मी पैदा हो गई। रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर सईद इलाही की जानिब से दी जाने वाली अफ्तार पार्टी में खाना कम पड़ गया। जो जिसके हाथ लगा किसी और तक ना पहुंच सका और जो लपकना झपटना नहीं जानते थे खाली पेट वापस लौट कर। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर सईद इलाही ने न्यू गार्डन टाउन में हल्का PP 152 के लीगी कारकुनों और रहनुमा के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, SP मॉडल टाउन मलिक अवैस, तौसीफ कुरैशी, हाफिज अमीर अली ऐवान, खुर्रम नज़ीर, TMO फैसल शहजाद, मंसूर अहमद, मंसूर इलाही, डॉक्टर चंगेज़ अकबर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। जब अफ्तार का वक्त हुआ और लोगों ने रोज़ा खोला तो पता चला कि लोग ज़्यादा और खाने पीने की अशिया कम हैं। खाने की ट्रे जब भी आती और जिसके हत्थे चढ़ती सब इस पर टूट पड़ते और ऐसे झपटते जैसे दुश्मन पर हल्ला बोला हो। खाना कम पड़ने की वजह से अफ्तारी में शरीक लोगों की बड़ी तादाद बगैर खाना खाए ही चली गई, जबकि आधे घंटे के इंतजार के बाद अफ्तारी में आए चंद मोज़ीज़ीन को खाना घर के अंदर ड्राइंग रूम में खिलाया गया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ उमर असलम, सिटी 42। महकमा सेहत की जानिब से 5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद हेपेटाइटिस के मरीजों के PCR टेस्ट के लिए किट्स फराहम न की जा सकी। पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत PCR किट्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 3 माह का अरसा दरकार होगा।
पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लाहौर में जिन्ना अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जबकि दीगर शहरों में मजमूई तौर पर 12 लेबॉर्ट्रीज में PCR टेस्ट की सहूलत फ्राहम की गई है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से PCR टेस्ट के लिए किट्स फ्राहम की जाती हैं ताकि हेपेटाइटिस के गरीब मरीजों को PCR टेस्ट की सहूलत मुफ्त फ्राहम की जा सके। हेपेटाइटिस के टेस्ट के लिए फ्राहम की जाने वाली किट्स रवां बरस मार्च में ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद महकमा सेहत ने मज़ीद किट्स का इंतजाम ताहाल नहीं किया है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत महकमा सेहत ने PCR किट्स की खरीदारी के लिए फंड्स ही फ्राहम नहीं किए थे, ताहम रवां माली साल में PCR किट्स की खरीदारी का अमल शुरू किया गया है, जिसे मुकम्मल करने में 3 माह का अरसा लगेगा और दिसंबर से कबल मुफ्त PCR टेस्ट की सहूलत बहाल नहीं हो सकेगी। हेपेटाइटिस के मरीजों के PCR टेस्ट के लिए किट्स फ्राहम न किए जाने के मसले के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया सिटी 42 से बात करने के लिए। ये बताएगा कि 5 माह का अरसा गुजर चुका है, PCR किट्स फराहम नहीं की जा सकी, क्या तात्तुल है, क्या वजह है? में हेपेटाइटिस प्रोग्राम पे हुकूमत पंजाब बड़ा मुअस्सर प्रोग्राम कर रही है और उन लोगों की अवेयरनेस के लिए और उनके अलावा जो उनका मुकम्मल कोर्स है वो तमाम बड़े अस्पतालों में उसके कोर्सेज के सहूलतें मौजूद हैं। जो आपने सवाल किया है, हेपेटाइटिस बी और सी की किट्स तो वाफर तादाद में मौजूद हैं। जो जीनोटाइप PCR है वो कुछ अरसे से जना अस्पताल में उसकी सप्लाई में स्लो ज़रूर है, लेकिन ये है कि बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और बाज़ का हुकूमत की तरफ से उनको वो किट्स की जा रही है। उस किट्स की मालियत तकरीबन 2.5 लाख रुपये 95 मरीजों को इलाज किया जाता है। वो मैंने आपकी खबर जाहिद साहब वाली खुद की देखी है, उसकी मैं डिटेल ले रहा हूँ और मैं उसमें देख सकती है कि हम उसकी अगर तो ऊपर को एक गरीब मरीज को उसकी जरूरत है तो उस किट्स की फराहमी में ज़्यादा बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बी और सी पे काम चल सकता है क्योंकि टेक्निकल मसला है, मुझे वहाँ डॉक्टरों से, वहाँ के प्रिंसिपल से और MS से ज़रा इस मामले में बात करनी पड़ेगी, तो फिर उसमें हम उसमें मजीद जो है ना इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे और वो जो किट है उसकी फराहमी जो है उसको बेहतर तरीके से करवा दी। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा सलेमान सिटी 42 से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा सलेमान। उनका ये कहना था कि जल्द PCR किट्स फ्राहम कर दी जाएंगी मरीजों को, जबकि दूसरी जानिब बुलेटिन में बात करते हैं शहर के पासपोर्ट दफातर में एजेंट माफिया का राज है। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरी कतारों में खड़े खड़े ख्वार होने लगे हैं। आमिर डार की रिपोर्ट। एबट रोड और गार्डन टाउन में एजेंटों का सहारा लिए बगैर पासपोर्ट का इजरा इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि एजेंट अपने आदमी कतारों में खड़े करके टोकन ले लेते हैं, जबकि बगैर एजेंट के आने वाले शहरी इंतजार ही करते रह जाते हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पासपोर्ट दफ्तर के क्लर्क्स बिलावजह एतराज़ लगाकर तंग करते हैं, जबकि एजेंट के साथ आने वालों का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाता है। इनके अपने बंदे हैं, सारे पैसे लेके वो अपने जो बंदे हैं उनके उनसे काम करवाते हैं सारे। मेरे से आज 5,000 मांग रहे थे 4 पासपोर्टों का। सुबह 7 बजे के आए हैं और अब जाके बना है। जो सिफारशी हैं, जो एजेंट के थ्रू हैं, वो कोई पैसे पूसे दे के लाइनों का यानी क्रॉस मार के आगे चले जाते हैं और हम वैसे ही उधर। यहाँ पर कोई हाल नहीं, जो अपने एजेंट के साथ आता है इधर बाहर पैसे देते हैं वो आ जाते हैं, उनकी बारी जल्दी आ जाती है। जो दूसरे होते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं। शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट दफ्तर के अंदर वॉशरूम है न पानी, जबकि बिजली का मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस शहरी गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खवातीन और बुजुर्गों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जाएं। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ आमिर डार सिटी 42। 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के यौम शहादत के मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जुलूस के साथ 4000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि हर शख्स की 3 जगह चेकिंग की जाएगी। 21 रमज़ान को मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से शुरू होगा और करबला गांव में शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, MNA परवेज़ मलिक और मियां मरहूब अहमद, अरकान पंजाब असेंबली चौधरी शहबाज, ख्वाजा सलेमान रफीक, आजासिम शरीफ, DCO, DIG ऑपरेशन, CTO डॉक्टर उस्मान, चेयरमैन उलमा इत्तेहाद काउंसिल अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी, चेयरमैन अज़दारी फाउंडेशन सैयद अजमल हुसैन नकवी, आगा शाह हुसैन कजलबाश समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने बताया कि यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और मुतल्लिका इदारों का एक एक ऑफिसर भी जुलूस के हमरा होगा। DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। जुलूस के साथ 4000 एहलकार तैनात होंगे। रास्ते खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए जाएंगे, जबकि CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। इजलास में 21 रमज़ान का जुलूस शाम 5 बजे तक खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। उधर रुकन सूबाई असेंबली कर्नल रिटायर्ड शुजात खानजादा, DCO नूरुल अमीन मेंगल और DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने मुबारक हवेली का दौरा किया
और जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने जुलूस के रूट का भी जायजा लिया। 21 रमज़ान के जुलूस के लाइसेंस होल्डर सैयद अहमद मुनीर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत अपने तर्ज तामीर के हवाले से तारीखी अहमियत की हामिल है। ये कलानुमा इमारत अंग्रेज़ों के अहद में पाया तकमील को पहुंची। तफसीलात अख्तर हयात की इस रिपोर्ट में। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत भारत के 2 तारीखी रेलवे स्टेशनों मुंबई के विक्टोरिया और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की बात खूबसूरती में बेमिसाल है। इस इमारत की तामीर का आगाज 1849 में हुआ, जब उस दौर के गवर्नर पंजाब सर जॉन लॉरेंस ने इसका संग बुनियाद रखा। इसके चंद ही साल बाद जंग आज़ादी शुरू हो गई, जिसे गदर का नाम भी दिया जाता है। अंग्रेज फौज में मुसलमानों ने बगावत की तो बरसगीर के बेशतर मुसलमान अंग्रेजों पर वक्तन हमले करने लगे। लाहौर रेलवे स्टेशन की तमीर जारी थी। जंग आज़ादी अगरचे खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं कहीं झड़पें जारी थी। ज़ेरे तमीर रेलवे स्टेशन पर भी हमले शुरू हो गए, लेकिन यहाँ काम में मसरूफ अंग्रेज अफसरों और अहलकारों ने काम न रोका। बस हमलावर टोलियों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन के चारों तरफ ऐसे मीनार तमीर कर लिए जो मोर्चों का काम भी देने लगे। इनमें बैठकर अंग्रेज अहलकार जवाबी फायरिंग करते थे। इस तरह दिन रात की मेहनत के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन मुकम्मल हो गया। इब्तदा में यहाँ 24 घंटे के दौरान 75 रेलगाड़ियाँ चला करती थी। प्लेटफार्मों की तादाद 9 हुआ करती थी, अब 10 हो चुकी है। गाड़ी तक पहुंचने के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ता था। अपने इब्तदाई दौर में दरवाज़ा रात के वक्त बंद कर दिया जाता, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद रेल की आमदोरफ्त बंद हो जाया करती थी। आज लाहौर का रेलवे स्टेशन अपने खूबसूरत प्लेटफार्मों के साथ अगरचे पुरकशिश हो चुका, लेकिन रेल का हाल बुरा है। यूं लगता है जैसे अनदेखी ताकत रेलवे का पहिया जाम करने के दर पे है। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत अपने अंदर फ़न तामीर के हवाले से एक नहायत दिलचस्प तारीख की हामिल है। अगर इसे रेल कहानी का उन्वान दिया जाए तो गलत ना होगा। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत सनती आलूदगी रोकने के हवाले से इजलास हुआ। लाहौर चैम्बर के नुमाइंदों ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से माजरत कर ली। महकमा माहौलियात के दफ्तर में रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत सनती आलूदगी रोकने के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अली मियाँ, सेक्रेटरी माहौलियात सईद वाहला, DG माहौलियात मकसूद अहमद, डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ख्वाजा शाहजेब, मियाँ अबू जरशाद, सैयद मोहम्मद उमैर और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। महकमा माहौलियात के अफसरान ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जोर दिया, जिस पर लाहौर चैम्बर के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ अपनाया कि तवानाई बहरान की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है और कोई भी सनतकार फ़ायदे में नहीं। इंडस्ट्री यूनिट्स 4-4 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते। इनफरादी या मुश्तरका तौर पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना सनतकारों के लिए मुमकिन नहीं, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन शहरी अभी तक रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात और अशिया के मेयार से मुतमिन नहीं है। MPA चौधरी वसीम कादिर ने शालामार सस्ते रमज़ान बाज़ार का दौरा किया तो सारफीन ने उनसे क्या शिकायत की, जानते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में। शहर में आवाम को रिलीफ देने के नाम पर रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, ताहम शहरी इन रमज़ान बाजारों में अशियाए खुरोनोश के मेयार से काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि रमज़ान बाजार में अशिया की क्वालिटी नाकिस है, जबकि आम बाजार से रमज़ान बाजार का मवाजना किया जाए तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। बस ये अपना टाइम पास है, कोई बस गरीब आदमी जो है वो अपना गुजारा कर रहा है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। इतनी अच्छी है और ना ही इतनी ख़राब है। बहरहाल तो जो रिलीफ देना चाहिए वो रिलीफ नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। रेट इनके बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में जो चीज़ 15 मिल रही है यहाँ पे 20 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये कि नहीं चाहिए कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पे कुछ कम करें। रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने तो अवामी शिकायत मानने से ही इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अवाम की सहूलत के लिए रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। यहाँ न सिर्फ मेयारी बल्कि बाजार से रियायती निर्खों पर अशिया फराहम की जा रही हैं। अवाम की खिदमत करना ही पंजाब हुकूमत का मिशन है। नहीं समझ आ रहा कि किन्होंने आपसे बात की है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, आप देख लीजिए प्राइस में फ़र्क है और वाज़ा फ़र्क है। सार्फीन ने मुतालबा किया है कि रमज़ान के बाबरकत नाम पर लगाए गए बाजारों में अवाम को लफ्जी नहीं हकीकी मानों में रिलीफ दिया और अशिया की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42।
عید الفطر قریب آتے ہی شہر بھر میں کپڑوں، جیولری اور جوتوں کی نمائش منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں خواتین بھرپور انداز میں خریداری کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ایمن طاہر کی رپورٹ۔ عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ کپڑوں، جیولری اور جوتوں کے ڈیزائنرز بھی خصوصی نمائشوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ شہریوں کو ایک ہی چھت تلے بہترین ویرائٹی میسر آ سکے۔ رواں سال بھی عید سے قبل پرل کانٹیننٹل ہوٹل اور ووک ٹاور سمیت متعدد مقامات پر نمائشوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ اس عید پر موسم کی مناسبت سے ہلکے اور آرام دہ ملبوسات فیشن میں ہیں، جبکہ جوتوں میں خود سے خواتین میں بے حد مقبول ہیں۔ چھوٹی عید از اباؤٹ ٹرینڈی، لوگ ٹریڈیشنل چیزیں پہنتے ہیں اور نا، تو ہم لوگوں نے اس لیے خود سے ڈیزائن کیا۔ آج کل خود سے اتنے ان ہے، لوگ جینس، لڑکیاں جینس کے نیچے بھی پہن رہی ہیں، کرتوں کے نیچے پہن رہی ہیں۔ عید کے لحاظ سے تھوڑا سا آؤٹ ہے، لوگ زیادہ سیمی فارمل کی طرف جا رہے ہیں، بس موسم بھی ایسا ہے تو سارا مکس اینڈ میچ، لاٹ آف ڈیجیٹل پرنٹنگ از ان۔ دوسری جانب خواتین کا کہنا ہے کہ عید پر نمائشوں کے انعقاد سے انہیں منفرد اور جدید فیشن کے ملبوسات اور جوتے عموماً ایک ہی چھت تلے مل جاتے ہیں، جس سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان میں آپ کو بہت ساری ڈیزائنرز کی کلیکشن جو ہے وہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ چوائسیز کے مطابق آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ شوز بھی ہوتے ہیں، ڈریسز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل جیسا گرمی ہے تو آپ لوگ ذرا زیادہ لانز اور زیادہ اس میں کٹس میں جا رہے ہو، زیادہ ہیوی کام تو ہو نہیں رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور فیشن کا مرکز ہے، چنانچہ نمائشوں کا انعقاد فیشن انڈسٹری میں نئے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ شہریوں کے ذوق کو بھی نکھارتا ہے۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے تاج پاک کے علاقے میں 52 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ واگزار کرائی گئی جگہ پر پہلے بھی آپریشن کیا گیا تھا، لیکن قبضہ گروپ نے دوبارہ یہاں قدم جما لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار شاہد کلیانی اور اسسٹنٹ کمشنر کینٹ امان انور قدوائی کی نگرانی میں کیے گئے آپریشن میں شالیمار ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کی انتظامیہ بھی شریک تھی۔ قبضہ شدہ اراضی پر بنائے گئے گھر اور ڈیرے مسمار کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر پہلے بھی آپریشن کیا گیا تھا اور کئی بار لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اس جگہ کی خرید و فروخت نہ کریں۔ سستی زمین کے لالچ میں لوگ یہاں جگہ خرید لیتے ہیں۔ اس جگہ کے انتقال سپریم کورٹ کی ہدایت پر منسوخ کر دیے گئے تھے، لیکن جو گھر 2001 سے پہلے تعمیر ہوئے ہیں ان کو مسمار نہیں کیا جا رہا۔ ڈویلنگ یونٹس ہیں جو پختہ تعمیرات ہو چکے ہیں، اس سٹیج پہ ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے۔ جو چار دیواریاں اور نئی کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، اور ایون گورنمنٹ کی ایک پالیسی بھی آئی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، جن لوگوں کے پہلے کے مکانات ہیں، پختہ مکانات ہیں 2000 سے یا 2001 سے، اس کا سروے بھی ہو رہا ہے۔ ایل ڈی اے نے ڈاکٹرز ہسپتال کے توسیع منصوبے پر دوبارہ کام رکوا دیا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے حکام کا کہنا ہے کہ قانونی تقاضے پورے ہونے تک کام بند رہے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 2 ماہ قبل ڈاکٹرز ہسپتال کے توسیع بلاک کے ترقیاتی کاموں کو نقشے کی میعاد ختم ہونے پر رکوا دیا تھا اور زیر تعمیر حصے کے ارد گرد مانسون کی بارشوں کے پیش نظر دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق ڈاکٹرز ہسپتال انتظامیہ نے چند دنوں سے تعمیراتی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے شٹرنگ کا کام شروع کر رکھا ہے، جس پر انہیں وارننگ بھی دی گئی، لیکن انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جس پر ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ڈاکٹرز ہسپتال کے توسیع بلاک کے تعمیراتی کام کو دوبارہ رکوا دیا ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے مطابق ڈاکٹرز ہسپتال کے توسیع بلاک کے نقشے کی میعاد 2010 میں ختم ہو چکی ہے، جبکہ ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی سے بھی نقشے پر نظر ثانی کرانا باقی ہے۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ڈاکٹرز ہسپتال کے توسیع بلاک کے تعمیراتی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا ہے کہ انسانی زندگی کے بچاؤ کے اقدامات سے آگاہ ہونا ہر شہری کا فرض ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ ڈی جی ریسکیو 1112 ڈاکٹر رضوان نصیر نے ان خیالات کا اظہار علامہ اقبال میڈیکل کالج میں طلباء و طالبات کے لیے 2 روزہ ریسکیو ٹریننگ کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 مختلف اداروں کے طلباء کو تربیت دے رہی ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں ہر گلی محلے میں رضاکار موجود ہوں جو فوری طور پر انسانی جانیں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ 2 روزہ ورکشاپ میں ریسکیو کی لیڈی انسٹرکٹر سمیت 8 انسٹرکٹرز نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 160 طلباء و طالبات کو تربیت دی۔ ورکشاپ کے انعقاد پر AIMC کے پرنسپل پروفیسر محمود شوکت نے ریسکیو حکام کا شکریہ ادا کیا۔
ईद करीब आते ही डाकू और चोर शहर में सरगर्म हो गए हैं। एक ही दिन में डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। तफसीलात बता रहे हैं वसीम रियाज इस रिपोर्ट में। सांदा के इलाका में डाकू लियाकत नामी कसाब से 32 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। लियाकत रकम लेकर बकरे खरीदने जा रहा था। सब्जादार के इलाका में घर के दरवाजे पर खड़े मकसूद अहमद से 2 डाकू हज़ारों रुपए नकदी लूट कर ले गए। जौहर में नसीर अहमद की बेकरी से 2 डाकुओं ने 50,000 रुपए लूट लिए। गार्डन टाउन बरकत मार्केट में उमैर से 2 डाकू 20,000 रुपए नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन ले उड़े। उन्होंने जूस पिया, उसके बाद फिर अपना काम किया। उन्होंने गन्ने निकाल ली, 2 पिस्टल निकाल दी, दोनों के पास पिस्टल थे, दोनों निकाल ली और अपनी कार्रवाई करके चले गए। तकरीबन 7:15 बजे गली में पहुंचे, कार ने रस्ता रोकया, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਜਰ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਫੜੀ ਸੀ। जराइम का सिलसिला यही नहीं रुका। शादमान के इलाका में मेहरान कार चोरी हुई, जिसके बाद कार चोर फैसल टाउन से लियाकत अली की गाड़ी चोरी कर फरार हो गए। इसके अलावा गुलबर्ग से आतिफ नामी शख्स की गाड़ी चोरी हो गई। शहरियों का कहना है कि डकैती व चोरी की बढ़ती हुई वारदातें पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। माह रमज़ान के महीने में सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और पुलिस जराइम पे काबू भी नहीं पा रही। पुलिस को चाहिए कि थानों से बाहर निकले और जराइम पे काबू पाए। माह रमज़ान के महीने में इस वक्त सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने ही है। यहाँ पे दिन दिहाड़े डकैतियाँ भी हो रही हैं, ठीक है, और वारदातें भी काफ़ी हो रही हैं। पिछले दिनों में यहाँ पे मेरे छोटे भाई का एक मोबाइल भी छीन लिया गया है। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों का कहना है कि पुलिस इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट और काशिफ बेग के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। शहर के मुतादिद मकामात पर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टियों का अहवाल बता रहे हैं रिफत अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी रिहाइश गाह मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग में सहाफ़ियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सलमान गनी, नजम वली, सरमद बशीर, अंजुम रशीद, परवेज बशीर, अदनान मलिक, फारूक हबीब समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा गुलाम हुसैन शाहिद की जानिब से हॉस्पिटैलिटी इन होटल में पार्टी रहनुमाओं और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन कौमी असम्बली सऊद मजीद, सूबाई वजीर अहमद अली औलक, मुशीर वजीर आला पंजाब ज़किया शाहनवाज, राना मोहम्मद अरशद, एहसन रजा, मेहर इश्तियाक, अरशद खान न्याजी, नदीम पहलवान, खादिम कसूरी, चौधरी शौकत रंधावा, जबकि गुलकारा अजरा जहां, दुर्दाना रहमान, अमानत चंद, निदा चौधरी और हुमा समेत दीगर ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब सेनेटर सरदार खान की जानिब से खिदमत ग्रुप हॉल रोड के अहदेदारों के एजाज में अवारी होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बाबर महमूद, मौजम अली खान, इकबाल शनवारी, सलीम भट्टी, मोहम्मद आजम, आदिल हफीज, राना नौमान, आबिद हुसैन, नोमी भट्ट और चौधरी मोहम्मद असलम समेत दीगर ने शिरकत की। इसी तरह मुस्लिम लीग की रहनुमा अदनान खालिद भट्ट की जानिब से जौहर टाउन में रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल जियाबट के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मलिक अहमद हसन, चौधरी रशीद, तनवीर बुखारी, नसीम बानू, चौधरी असलम, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान, जफर इकबाल गाजी, मियां अकबर, चौधरी अरशद गुज्जर समेत लीगी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन PIC की जानिब से भी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया, प्रोफेसर मोहम्मद अजहर, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हयात मलिक, MS डॉक्टर मोहम्मद जावेद, एडिशनल MS डॉक्टर नोमान, डॉक्टर हामिद महमूद, डॉक्टर हामिद भट्ट, डॉक्टर आमिर बंदेशा, डॉक्टर मोहम्मद वसीम, डॉक्टर नासिर अब्बास, डॉक्टर बशारत गिल, डॉक्टर खजीमा, डॉक्टर उस्मान डार, डॉक्टर जिशान, डॉक्टर मतलूब, डॉक्टर अजमल, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर साकिब जावा, डॉक्टर तजम्मुल भट्ट, सहाफ़ी सलीम शेख, अमीन हफीज और मोहम्मद अली समेत सीनियर और नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरी जानिब MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज में LDA कम्युनिटी सेंटर मुस्लिम टाउन में इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन वासा हाजी मोहम्मद शरीफ, MNA मियां मरहूब अहमद, MPA रमजान सदीक भट्टी, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा इमरान रजा, इमरान गोराया, खालिद हसनैन, ख्वाजा नसीर, उल्फत मुगल, शकील काश्मीरी, मोहम्मद इरफान, तस्लीम सनाउल्ला, असलम न्याजी, इफ्तिखारुद्दीन नईम, इम्तियाज मुश्तबा गौरी, चौधरी शाहिद महमूद और फयाज अहमद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों को वासा की जानिब से रवा मॉनसून में की जाने वाली कोशिशों के हवाले से भी आगाह किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ रिफत अब्बास, सिटी 42। कनेट कॉलेज में यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िदा स्पोर्ट्स मेले में टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों का कहना है कि बाबाए कौम की जानिब से मिलने वाले आज़ाद वतन के तोहफे पर जितनी भी खुशी मनाई जाए कम है। एजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। कनेट कॉलेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद किए गए यौम आज़ादी स्पोर्ट्स मेले के टेबल टेनिस इवेंट में फरवा बाबर ने यकतरफा मुकाबले में शुमैला वास्ती को शिकस्त दी। बैडमिंटन इवेंट के डबल्स मुकाबलों में एमन और जवेरिया ने फरीहा इम्तियाज़ और जैनब को हराकर कामयाबी हासिल की। बास्केटबॉल मुकाबलों की सीनियर कैटेगरी में कैद आज़म 11 ने फातिमा जिना 11 को 8 के मुकाबले में 15 बास्केट स्कोर से शिकस्त दी, जबकि जूनियर बास्केटबॉल इवेंट का फाइनल कनेट वाइट ने जीत लिया।
खिलाड़ियों का कहना है कि मौजूदा हालात में यकजहती की ज़रूरत है। यौम आज़ादी स्पोर्ट्स मेले में शिरकत करके खुशी मिली। इमेज बनाई हुई है हमारी जिसमें वी आर टेररिस्ट, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट कंट्री है और मतलब कि इंडिपेंडेंस शो करें तो हम लोग क्यों ना सेलिब्रेट करें अपना इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त के हवाले से स्पोर्ट्स के इवेंट्स करके हम लड़कियों में वाकई यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जगा रहे हैं, बिकॉज जब हमें गेम करते हैं तो उससे लड़कियों में एक स्पिरिट पैदा होती है। हर चीज़ हम लोग को मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली है, वो हमारे लीडर हैं और उन जैसा वो मेरे आइडल है एंड आई थिंक उन जैसा इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ। यौम आज़ादी स्पोर्ट्स मेले में हॉकी इवेंट का भी इनेकाद किया गया, जिसमें कनेड वाइट ने कनेड ग्रीन को 1-0 से शिकस्त दी। खिलाड़ी ओलंपिक में कौमी टीम की कारकर्दगी से खफा और अपने मुस्तकबिल के लिए पुरज़म दिखाई दी। तो वी जस्ट प्रे और हम उनसे गवर्नमेंट से भी होप करते हैं कि वो हमें आगे लाएं, क्योंकि वी आर वेरी गुड प्लेयर्स और हमारे अंदर बहुत मतलब कि इंकरेजमेंट है, हमें इंकरेज करें तो इंशाल्लाह विल प्ले वेल। अगर वो विन करके आते तो हमारी हॉकी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, हम लोग ज़्यादा तो जल्दी जा सकती थी, लेकिन कल वो लोग हार गए, इसकी वजह से हमारी हॉकी प्रमोट नहीं हो सकती। यौम आज़ादी स्पोर्ट्स मेले के अख्ताम पर शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड उस्मान अनवर और कनेड कॉलेज की प्रिंसिपल रुखसाना डेविड ने फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लाहौर पुलिस ने रमज़ान मुबारक में भी शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मसाजिद में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। खुली कचहरी के हवाले से बता रहे हैं इरफान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल यू टर्न केस में CTO डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर ने हाई कोर्ट में पेश होकर रैपिड बस ट्रांजिट मंसूबे में एम्बुलेंस लेन प्लान पेश कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर सईद शेख की अदालत में जनरल अस्पताल यू टर्न केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के तहत जनरल अस्पताल का मौजूदा यू टर्न ख़त्म करके 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर ने अदालत में पेश होकर बताया कि इस मंसूबे के तहत नई बसें चलने तक खसूसी लेन में एम्बुलेंस को चलाया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर एम्बुलेंस चलाने के लिए रोड मार्किंग की बजाय और दोनों अतराफ में तजावजात और पार्किंग स्टैंड्स खत्म किए जाएंगे, जबकि नई सड़कों की तामीर के वक्त एम्बुलेंसेस के लिए अलहदा लेन बनाने की तजवीज़ भी हुकूमत को पेश की जाएगी। CTO ने मौक़िफ़ अपनाया कि म्यू और गंगाराम अस्पताल के लिए MBRT मंसूबे में अलहदा रास्ता देना मुश्किल होगा। अदालत ने इस केस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। रैपिड बस के मंसूबे में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा है कि जूँ के वहाँ पे साइड पर काम हो रहा है, तो जूँ ही काम हमारा रैपिड बस के कॉरिडोर पे कंप्लीट होता है और जब तक हमारी बसें नहीं चलती इस दौरान में एम्बुलेंसेस को इसमें फ्री वे भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा प्लान बाकी हस्पतालों के बारे में है, उसमें हमने ये प्रपोज़ल दी है कि जो कहीं लेफ़्ट साइड पे और कहीं राइट साइड पे डिपेंडिंग अपॉन के कैसी वहाँ कंडीशंस हैं, एम्बुलेंस प्रेफर्ड लेन बनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने धोखा दही के मुलजिम फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक का नाम एग्जेट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में दरखास्त गुजार सरवेद अहमद एडवोकेट की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक ने इसको बैरून मुल्क भिजवाने के लिए $3,20,000 अमरीकी डॉलर दिए, लेकिन इसके बावजूद इसे बैरून मुल्क नहीं भिजवाया। अदालत में डायरेक्टर FIA वकार हैदर भट्टी भी पेश हुए, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म पर फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक के खिलाफ 3 रुकनी मुश्तरका टीम तहकीकात कर रही है। 3 सितंबर तक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी। दरखास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर फ्यूचर कंसर्न के मालिक को मज़ीद मोहलत दी गई तो वो मुल्क से फ़रार हो सकता है, जिस पर अदालत ने समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी करते हुए फ्यूचर कंसर्न के मालिक का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया है और आइंदा समाअत पर डायरेक्टर FIA और आसिम मलिक को तलब कर लिया। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स के मुलाजमीन का 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज का सिलसिला 88वें रोज़ भी जारी रहा, जबकि तालाबंदी को 38 रोज़ हो गए हैं। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में AG ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सदर AG ऑफिस और चेयरमैन एपका पंजाब जफर इकबाल कंबो ने सिटी 42 को बताया कि जुमेरात को AG ऑफिस में ऑल पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स की सुप्रीम काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, जिसमें अहदेदारों से बाहमी मुशावरत के बाद ईद उल फितर की तनख्वाहों के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने सरवसी अस्पताल में ज़ेर इलाज लेस्को एहलकारों की अयादत की। सीनियर नायब सदर राना तारिक का कहना है कि मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर IG पंजाब के दफ्तर की बिजली काट सकते हैं।
मंगल के रोज हरबंसपुरा फाटक के करीब बिजली चोरों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 लेस्को एहलकार जख्मी हो गए। लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन के अहदेदारों ने सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद तारिक की सरबराही में सर्विसेज अस्पताल में अपने साथी जख्मियों की अयादत की। रमजान भट्ट, मुजाहिदुल्लाह बिल्ला, रमजान घुम्मन, अमजद हुसैन नाकरा, राना अकरम और खुर्शीद अहमद भी उनके हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मोहम्मद तारिक ने कहा कि वफाकी वजीर पानी और बिजली और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया गया है। फायरिंग करके 2 एहलकारों को जख्मी करने वाले मुलजिम मोहम्मद याकूब उर्फ मलंगी को गिरफ्तार करने में पुलिस लैतोलान से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर वो IG पंजाब पुलिस ऑफिस की बिजली काट सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जाके IG का भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि जब एक आदमी जो है वो दीदा दलेरी से बिजली चोरी कर रहा है और पुलिस अगर जो है उसको नहीं पकड़ रही तो फिर SP का क्या काम है। SP इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, SHO अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट बार में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के कराची शोहदा हॉल में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल में सुप्रीम कोर्ट बार की नायब सदर इमराना परवीन बलोच, मेंबर पंजाब बार कौंसिल गजाला खान, आयशा काजी, राना तीक नासर, जुल्फकार अली बुखारी, मियाँ मोहम्मद अरशद, शबनम नागी, मोहम्मद अजहर सदीक, अनवार अख्तर, आमना अजमल, रोज़ा मलक, तंजीला मरियम, शगुफ्ता कौसर, मनीबा फ़हीम और तैबा फ़हीम समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद में इमराना बलोच, राना तीक नासर, मियाँ अरशद, शबनम नागी, आमना और अस्मा ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाहे अक़ीदत पेश किए। आज तुमको बुलाता है परवरदिगार, डालो डालो नबी जी पर दरूदों के हार। रमज़ान उल मुबारक में जहां शहरी महफिले नात के ज़रिए नेकियां समेटने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वहीं वकला भी नेकियों का खजाना हासिल करने में किसी से पीछे नहीं हैं। महफिल मिलाद के आखिर में दुआ खैर की गई और शुरका को अफ्तारी कराई गई। कैमरा टीम के साथ मलक मोहम्मद अशरफ खोकर, सिटी 42 लाहौर हाई कोर्ट। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। सारिफ अदालत में लैपटॉप की बैटरी ख़राब देने और वापस ना करने पर अल हफीज़ लैपटॉप गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ 1.5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया है। सारिफ अदालत में ये दावा अवान टाउन के शाहिद अली की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसके लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई, जिस पर इसने 5,000 रुपये की नई बैटरी खरीदी, जिसकी 3 माह वारंटी दी गई, लेकिन इस्तेमाल पर पता चला कि बैटरी ख़राब है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसने फौरी तौर पर दुकानदार से राबता किया, जिसने बैटरी तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत से इस्तदा है कि दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने दावे पर दरख्वास्त गुजार के वकील को 12 सितंबर को बहस करने की हिदायत की है। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे सिटी तालीम में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने BSc इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। एंट्री टेस्ट फॉर्म वसूल करने का आगाज़ 13 अगस्त से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दाखिलों के लिए एक ही एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। एंट्री टेस्ट में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात को हिदायत की गई हैं कि UET की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से कराई जा सकती हैं। ऑनलाइन फॉर्म के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म की कॉपी भी लफ़ करना लाजमी करार दिया गया है। UET इंतज़ामिया की जानिब से इस एंट्री टेस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान में 12 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। एंट्री टेस्ट में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग BTech का इम्तहान पास करने वाले तलबा भी शिरकत कर सकते हैं। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। यौम आज़ादी के सिलसिले में कनेड कॉलेज में स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल मुकाबलों में
खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का इजहार किया। कनेट कॉलेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद किए गए यौम आज़ादी स्पोर्ट्स मेले के पहले इवेंट टेबल टेनिस में फरवा बाबर ने एक तरफा मुकाबले में शुमाइला को शिकस्त दी। हॉकी इवेंट में कनेट वाइट ने कनेट ग्रीन को 1-0 से शिकस्त देकर ट्रॉफी जीती। मैच का वाहिद गोल कलसूम जावेद ने किया। बैडमिंटन इवेंट के डबल्स मुकाबलों में एमन और जवेरिया ने फरीहा इम्तियाज और ज़ैनब को हराकर कामयाबी हासिल की। बास्केटबॉल मुकाबलों की सीनियर कैटेगरी में कायदे आज़म 11 ने फातिमा जिना 11 को 8 के मुकाबले में 15 बास्केट स्कोर से शिकस्त दी। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।